Students, and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about muscular tissue. We have completed all the lectures of epithelial tissue. The muscular tissue or simply referred as to muscles. Muscular tissue, if we talk about origin, the origin of that tissue is from mesoderm. As we have discussed that earlier on as well, that much of the muscular tissue is mesodermal in nature. See, when we talk about muscular tissue, muscles are the organs which enable us to make movements, to locomote. So generally जब हम type of movement पढ़ेंगे तो we'll be learning about muscular movement. There could be ciliary movement, there could be amoeboid movement, or there could be pseudopodial movement. Even cytoplasmic streaming is there, which we call cyclosis. Any movement which has been done with the help of muscles is muscular tissue. So muscles are mainly meant in order to make movement. Muscles are majorly meant in order to make movement as well as to locomotion. Even when I am making expressions of my face, that is due to muscles. Even the peristalsis of food is due to muscles. I will be covering that part later on in the lecture. So first let us start with the muscular tissue. As I told you that muscular tissue is mesodermal in origin. Do you know how many muscles we have in total? Everybody used to know about the total number of bones, but there are several students who do not have any idea about the total number of muscles. The total number of muscles in our body, the number goes is 639, and we are born with that much of muscles and no muscles are formed later on. एक और कंसेप्ट हम पढ़ते आते हैं कि मेनली नर्वस टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो डिवाइड वगैरह नहीं करता है, मसल्स भी डिवाइड नहीं करती हैं. मसल्स ग्रोज इन साइज. सो व्हेन यू आर हैविंग मोर मस्कुलर मास यू विल बी हैविंग लार्ज मसल्स, एंड व्हेन यू आर हैविंग लो मस्कुलर मास you will be having small muscles. Number of muscles are always same, they just grow in size. So there are two cells which do not undergo division. One was neurons and one would be neuron, which you have to discuss ahead, and second would be muscle cell. Anyways, so muscular tissue is mesodermal in origin. There are certain exception to that. There are certain muscles which are not mesodermal, except when we talk about exception, there are certain muscles which are present in our eyes and they are not mesodermal, except iris muscle of our eye, muscles of ciliary body, those muscles which gives me goosebumps, muscles which are present in the hair follicle or follicle of skin, we call that pylomotor muscle. और पाइलोमोटर मसल का दूसरा नाम होता है बेटा एरेक्टर पिलाई मसल, और वी आल्सो कॉल दैट एरेक्टर पिलाई मसल. So these are the muscles, special muscles which are present in the hair follicle, and these muscles are responsible for goosebumps, and these muscles are not mesodermal in origin. Moreover, myoepithelial cell which are present in the linings of sweat gland, salivary gland as well as mammary gland. Myoepithelial cell in sweat gland, salivary gland, and more important is mammary gland. These muscles are also not mesodermal in origin. So most of the muscles of our body are mesodermal with the exception of few. And what are the exceptions? One is iris muscle, muscles of ciliary body, pilomotor muscle or erector pili muscle. They are present in hair follicles. These muscles are present in eye, and myoepithelial cell in sweat gland, salivary gland and mammary gland. Let me tell you what is that myoepithelial cell. Let's say this here is the alveoli of mammary gland, and this alveoli is meant for the filling of milk. There are certain special muscular epithelium here. See, myoepithelial cell is a combination of muscle as well as epithelium, but we study these cells in muscles, not in epithelial tissue. There are certain
small muscle like cells here, or small muscles I will say, we do not count that in muscles. To be very exact, we do not count them in 639, because that is a epithelium which is having contractibility. That's why myepithelial cell. But we study them in muscles. There are certain special cell which we call myoepithelial cell, and these cells have a power of contraction. So under the stimulus, when these cells contract, they used to squeeze that pouch and milk has been ejecting out. Similarly, if it is a sweat gland, this secretion is sweat, and myoepithelial cell would result in the ejection of that. If it is a salivary gland, myoepithelial cell would result in the ejection or removal of that material. So certain muscle like epithelium present over the sweat gland, mammary gland as well as salivary gland, they are also not mesodermal in origin. तो सर आपने बता तो दिया कि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं मसल में जो मेसोडर्मल नहीं है. ये कहाँ से अराइज होती है, ये एम्ब्रियो की किस जर्मिनल लेयर से अराइज होती है? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दीज ऑल आर एक्टोडर्मल इन origin. So much of the muscles or most of the muscles in our body are mesodermal with the exception of few. And what are these exceptions? Here is the list, and from where these exceptions arise, answer is ectodermal. Is that clear? Please say yes or no. Now let us discuss the definition of muscular tissue, or what do you define, how do you define muscle? Before starting the real definition of a muscle cell, let me give certain terms which are exclusively related with muscular tissue, and these terms are, whenever in biology you read about myo, it simply pertains to muscle. The term myo in biology pertains to muscle. When you learn the term sarco, it also pertains to muscle. आप पढ़ोगे मसल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कह देंगे, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह देंगे, मसल का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सार्कोमियर कह देंगे. तो मायो, सार्को एंड देयर इज वन मोर विच वी कॉल मोटर. These are the three terms which has been interchangeably used for muscles. तो जहाँ भी कहीं, जैसे for example I am talking about this cell, that's a special epithelium which is having muscular property, we call that myoepithelial cell. So terminology which has been related with muscles is myo, sarco and motor. Is that clear up to here? Alright. Now coming on the definition, that in a muscular tissue how the cells are arranged, and what is the other name of muscle cell, what is muscle fiber, what is myofiber, myofibril and myofilament. ये कुछ टर्मिनोलॉजी और आएंगी, इनके बारे में मैं समझा दूंगा. So what you will learn, that in a muscular tissue, cells are in form of contractile fibers, hence we also call that myofibers. So what is the meaning of term myofiber? Whenever you read myofiber, it simply means muscle cell. So in a muscular tissue जितनी भी cells होती है, they are in form of contractile fiber, we call that myofiber. These fibers, or let's call that cells, the fibers or cells are bound together with the help of connective tissue, but please do remember help of connective tissue, but they have no intracellular substance. And that is something important to remember. But they have no intracellular substance,
substance, and that is something important to remember. So what you have learned, epithelial tissue के अंदर very little intercellular substance, muscular tissue के अंदर there is no intercellular substance. तो जितने भी cells होंगे they are bound together with the help of connective tissue, and these cells are generally, I will be telling you which cells are present in bundles and which cells, which fibers are not that much closely bound. We will be learning that later on. So what you learn, in a muscular tissue, cells are in the form of contractile fibers, and these contractile fibers are known as myofiber, and myofiber is the other name of muscle cell. The fiber or cell are bound together with the help of connective tissue, but they have no intercellular substance. So continuing the terminology part, those cells which give rise to new muscle fiber or during the embryonic time, those cells from which muscle cells are formed, we call that myoblast. So myoblasts are those cells which give rise to muscle fiber. Next terminology, myoblast. देखो आप ना पढ़ोगे बायोलॉजी में कि भाई इर्थोब्लास्ट वो सेल होती है जो इथोसाइट्स को बनाती है, मेनली ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होती है जो बोन सेल को बनाती है. तो मायो इज द टर्म फॉर मसल. मायोब्लास्ट गिव राइज टू मसल सेल, द फर्स्ट वन. Then how many names I told you about muscle cell? Muscle cell is also known as myofiber, and it is also known as myocyte. So cyte stands for cell, muscle cell, myofiber or myocyte. These are the terminology for the same thing. Are we done up to here? Then I will be telling you कि जो जितने भी मसल सेल होते हैं उनके अंदर प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है. हर एक मसल सेल के अंदर प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन के फिब्रिल होते हैं, उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट वुड बी ईच मसल सेल in their cytoplasm, each muscle cell in their cytoplasm consists of numerous contractile fibril, protein fibrils, and we call that myofibril. तो myofibril myofiber के अंदर होता है, याद रखेंगे. Next definition, that each fiber, when I say fiber, I mean to say what? Yes please, I mean to say muscle cell. Each fiber consists of fine protein fibrils. चलो fibrils कहाँ के बने होते हैं अगले स्टेटमेंट में लिख दूंगा. Fine fibrils. प्लीज़ डो नॉट कन्फ्यूज बिटवीन फाइबर एंड फिब्रिल से अक्सर बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो फाइबर इज द नेम फॉर मसल सेल एंड फिब्रिल आर द स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल. सो ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ फाइन फिब्रिल कॉल्ड एज, यस प्लीज, व्हाट वी कॉल दैट? मायोफिब्रिल. तो आई होप मायोफिब्रिल और मायोफाइबर का डिफरेंस बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा. तो मायोफाइबर एक मसल सेल है, उसके अंदर जो प्रोटीन फिब्रिल्स होते हैं उनको बोलते हैं मायोफिब्रिल. और ये जो मायोफिब्रिल होते हैं कहाँ पर हो गया? एज आई टोल्ड यू दे आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म के लिए बच्चों क्या वर्ड यूज करेंगे? मायोप्लाज्म डजंट साउंड वेरी गुड, कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. सो व्हेन एवर यू रीड द टर्म सार्को नाउ, प्लीज डू रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मसल. So sarcoplasm is cytoplasm of muscle. Sarcoplasmic reticulum would be the endoplasmic reticulum of muscle cell. Sarcolemma would be the plasma membrane or modified plasma membrane of muscle cell. Is that clear? So what I told you that each fiber consists of fine fibrils known as myofibril, and they are present in the cytoplasm of cytoplasm of muscle, which we call sarcoplasm. Now I will be telling you the composition of these myofibrils. These myofibrils are protein filaments which are majorly made up of actin, myosin, titin and other proteins. वो जो अदर प्रोटीन्स है वो ना हम जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तब उनकी डिटेल में जाएंगे. ट्रोपोमायोसिन क्या होती है, ट्रोपोनिन क्या होती है एंड ऑल द थिंग्स. एक्टिनिन क्या है, जितनी भी प्रोटीन्स है वो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट में पढ़ लेंगे. फॉर द टाइम बीइंग लेट मी राइट हियर वन मोर स्टेटमेंट दैट these myofibril are composed of certain long proteins. These myofibrils
myofibrils are composed of long proteins made up of actin, myosin, टाइटिन. प्लीज डू रिमेंबर these three names. अक्सर जो है ना सवाल वगैरह में पूछ लेते हैं कि भाई मसल के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, तो मैं अभी ये तीन अच्छा और भी लिख देता हूँ. एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एटसेट्रा. तो मसल सेल के अंदर फिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर प्रोटीन्स. मायोफिब्रिल कहाँ के बने होते हैं? लॉन्ग प्रोटीन्स जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. और ये आपस में सब मिलके, ये प्रोटीन आपस में सब मिलके बनाते हैं मायोफिलामेंट, विच कलेक्टिवली फॉर्म्स मायोफिलामेंट. आप दो तरह के मायोफिलामेंट पढ़ेंगे आगे चल के. एक है थिक मायोफिलामेंट और एक है थिन मायोफिलामेंट. तो अगर आपको बहुत ही जनरल तरीके से एक चीज़ समझाऊं मैं, लेट्स से ये एक मसल सेल है बच्चों, इसी को बोलते हैं मायोफाइबर. और क्यों मायोफाइबर कहा है इसको? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर की फॉर्म में होता है. इस मायोफाइबर के अंदर खूब सारे लॉन्ग प्रोटीन्स आपस में बाउंड रहते हैं, इनको बोलते हैं मायोफिब्रिल. अब इन लॉन्ग प्रोटीन में कुछ फिलामेंट्स ज़्यादा थिक हो जाते हैं और कुछ फिलामेंट्स थिन रह जाते हैं. तो आगे चल के आपको बताया जाएगा थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बारे में. तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई. टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई बच्चों आपकी? व्हाट इज़ मायोसाइट, व्हाट इज़ मायोफाइबर एंड व्हाट इज़ मायोफिब्रिल एंड व्हाट इज़ मायोफिलामेंट. ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. एंड आई होप ये चार चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी. दिस इज मायोफाइबर, मायोफिब्रिल एंड मायोफिलामेंट. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट, अब बिफोर रियली स्टार्टिंग, देखो वी ऑल नो, आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि आपने जो है तीन अलग अलग तरह के मसल्स आपने पढ़े हैं. एक मसल आप पढ़ते हो जो आपकी बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट भी होता है, दैट इज़ योर स्केलेटल मसल. आपकी बॉडी के अंदर तकरीबन 400 मसल जो है वो स्केलेटल हैं, और उन 400 मसल में से तकरीबन 180 मसल्स तो आपकी बैक में ही होते हैं, और बाकी जो मसल्स है वो आपके स्मूथ मसल और कार्डियक मसल हो जाएंगे. तो हमें इसमें तीन अलग अलग टाइप के मसल्स पढ़ने हैं. हमें पढ़ना है स्केलेटल मसल के बारे में, हमें पढ़ना है स्मूथ मसल के बारे में, और हमें पढ़ना है कार्डियक मसल के बारे में. एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है मस्कुलर टिश्यू में, तो जो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो कवर कर लूँगा. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द टर्म फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं. नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे सार्कोलेमा. वी कॉल डेट सार्कोलेमा. अब ये जो सार्कोलेमा होता है ये कैसे डिफरेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर खूब सारे कोलेजन फाइबर आ जाते हैं. तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर खूब सारे कोलेजन फाइबर हो, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मसल्स की, और उसको बोलते हैं सार्कोलेमा. तो सार्कोलेमा इज विद मैनी कोलेजन फाइबर्स. और कोलेजन एक प्रोटीन है, और इनफैक्ट आपके बॉडी का, एनिमल वर्ल्ड का सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों? कोलेजन होता है. वन मोर टर्मिनोलॉजी इज क्लियर्ड हियर. अच्छा, आगे चल के ना कुछ ऑथर्स की किताबों में पढ़ोगे आपकी जो सार्कोलेमा होती है वो आपकी स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में ही होती है. स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा नहीं कहते, उसको सिंपली प्लाज्मोलेमा कह देते हैं. और प्लाज्मोलेमा कहने का क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ पे कोलेजन फाइबर वगैरह नहीं होते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग you guys must remember that the plasma membrane of muscle is sarcolemma, cytoplasm is sarcoplasm, and endoplasmic reticulum is sarcoplasmic reticulum. Is that clear up to here? Please say yes or no.
आई कांट हियर यू राइट। ओके, अगर बॉडी वेट की बात करें तो आप ये भी याद रख लेना बच्चों कि अबाउट 40% to 50% ऑफ ए ह्यूमन्स बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मसल्स। Muscles are made up of proteins, no fun in telling. About 40% to 50% of body weight is contributed by muscles only. तो कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी कि भाई मसल्स कितना बॉडी वेट कंट्रीब्यूट करता है, एंड यू विल रिमेंबर दैट अबाउट 40% to 50% ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। देन मस्कुलर टिश्यू हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी मस्कुलर टिश्यू के पास होगा बच्चे, वो होगा कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी। मस्कुलर टिश्यू have a property to undergo contraction and then come back in the relaxed form or in the original form. First is contractability, और contractability को आप ऐसे define करेंगे that muscle cell, muscle tissue can undergo contraction and come back in the relaxed form. Is that clear? लिखने की जरूरत है contractability क्या होती है। Can undergo contraction, contraction का मतलब होता है getting small in size and then get relaxed. Contraction and later get relaxed. अगर contracted ही रह जाए, देखो ये समझ में आता है कि अगले contraction के लिए एक बार relaxation करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये original size है और ये contracted size है, तो जब तक ये वापस से ओरिजिनल साइज में नहीं जाएगा ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिलैक्सेशन करना ज़रूरी है। देयर इज़ नो फन इन टेलिंग। तो बच्चे, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है या स्पेशल प्रॉपर्टी होता है मस्कुलर टिश्यू में, दे आर हैविंग एबिलिटी टू अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी भी होता है। दे हैव अ पावर ऑफ एक्साइटेबिलिटी। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप रहता है, और उस पोटेंशियल डेवलपमेंट की वजह से ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन कर देते हैं। तो जब आप पढ़ोगे या नर्वस टिश्यू में आपने पढ़ा होगा, व्हेन समबडी इज टचिंग यू, दिस इज अ मैकेनिकल टच एंड हाउ इट हैज़ बीन प्रोपोगेटिंग टू योर ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच वी कॉल एक्शन पोटेंशियल। तो आगे चल के पढ़ोगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जनरली रेस्टिंग स्टेज में उसका जो बाहर का साइड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इंटरनली इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। बाहर बहुत सारा सोडियम है, अंदर बहुत सारा पोटाशियम है। ओवरऑल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग। जस्ट रिमेंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्स अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो आपके बॉडी में दो एक्साइटेबल सेल आप याद रखोगे। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल, देयर इज नो फन इन टेलिंग, एवरीबॉडी नोज दैट। मसल सेल्स आर आल्सो एक्साइटेबल। तो मसल सेल आर इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल एंड दे डू नॉट अंडरगो डिवीजन। ये दो चीज़ याद रख लेंगे, ठीक है। सो एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये रहेगा बच्चों, दे डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल across their plasma membrane, across their plasma membrane। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दो कौन कौन से ऑटो एक्साइटेबल सेल, दो कौन कौन से एक्साइटेबल सेल होते हैं, इसमें से कुछ मसल ही ऑटो एक्साइटेबल होगी। ऑटो एक्साइटेबल और ऑटो रिदमिसिटी सिर्फ कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी होती है। तो मसल का पहला प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, दूसरा प्रॉपर्टी होता है एक्साइटेबिलिटी, एंड वेरी करेक्ट अगर बात करें तो इट इज़ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है उसको मैं दो प्रॉपर्टी को एक साथ लिख दूंगा। दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के लिए ही वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंडेबिलिटी। एक्सटेंड एबिलिटी, अपॉन गेटिंग स्ट्रेच दे कैन एनलार्ज देयर साइज। जो मसल फाइबर होता है उसको आप स्ट्रेच करेंगे तो साइज में बड़ा हो जाएगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज विच हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए मसल, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी,
and extendability. This is extendability. Now A is missing. My spellings are so poor, huh? You might be laughing at me for no reasons. All right. So अब बच्चों बिफोर रियली स्टार्टिंग द स्केलेटल मसल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, वैसे इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे पढ़ाने के लिए, बट आई विल बी टेलिंग यू ऑल द बेसिक थिंग एंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग. लेट मी टेल यू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए होल मसल. जब आप किसी का टीएस ले लोगे होल मसल का, तो उसके ऊपर कैसी कैसी कवरिंग आती है, पहले वो वाला पार्ट बता देता हूँ. फिर कुछ और आपको ना डाटा बता दूंगा कि आपकी लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल कौन सी है, वो 2-4 डाटा. देन आई विल गोइंग टू स्टार्ट द स्केलेटल मसल, राइट. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए होल मसल, टीएस ऑफ ए होल मसल. तो जब आप कभी आगे चल के एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, फैसिक्यूलाई ऐसे वर्ड पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान से याद हो जाएगा कि ये हमें क्या पढ़ाया हुआ है और ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर्स हैं क्या, ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर किस किस को कवर करती है. तो टीएस ऑफ ए होल मसल, ट्रांसवर्स सेक्शन और टीएस ऑफ ए होल मसल. तो अगर होल मसल की टीएस की बात करें बच्चों, जो कंप्लीट मसल होता है, एक्सटर्नली इट इज़ कवर्ड बाय ए शीट ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू. जब आप सबसे बाहर से देखेंगे तो उसके ऊपर एक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, और जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट जो होल मसल को एक्सटर्नली कवर करती है, इस फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेटा एपीमाइसियम. सो एपी माने आउटसाइड और माइसियम इज द वर्ड विच परटेन्स टू मसल. सो दैट शीट ऑफ fibrous connective tissue which covers the whole muscle from outside, we call that epimysium. Epimysium. What it is made up of? Fibrous connective tissue, dense fibrous connective tissue. ये connective tissue में word आ जाएगा दोबारा, right? Now inside it जितने भी मसल सेल होती हैं, व्हेन आई से मसल सेल आई मीन टू से मसल फाइबर, जितने भी मसल फाइबर होते हैं, दे आर कंडेंस्ड, दे हैव बीन accumulated or they are bound, something like this. This structure where muscle cell or muscle fiber bound together, the structure which is formed by the combination of muscle cell and muscle fiber. अगर स्ट्रक्चर की बात करें मसल टिश्यू जैसा लग रहा है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें इट इज़ पर्टेनिंग टू ए मसल टिश्यू, इजंट दैट इंडीड. इस स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पे खूब सारे मसल फाइबर आपस में अरेंज हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटे फैसिक्यूलाई. सो व्हाट इज़ फैसिक्यूलाई? फैसिक्यूलाई इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरस मसल फाइबर or let's call that muscle cell. So what is one more fascicula here, right? So these muscle cells are arranged in form of bundles, and these bundles of muscle cell are referred as to fasciculi. अब मैंने यहाँ पे भले ही आपका इंटरसेलुलर स्पेस बना रखा है पर वो नहीं होता, ये याद रख के चलेंगे, ठीक है. What is that structure here? Bundles of muscle fiber, muscle fiber, that structure is fasciculi. Are you very clear about fasciculi here? Please say yes. Now this fasciculi is covered by another sheet of fibrous connective tissue, and this sheet of fibrous connective tissue which covers each fasciculi, each bundle of muscle fiber, this sheet of fibrous connective tissue is known as perimysium. So what is perimysium here? Perimysium is a sheet of fibrous connective tissue, and this sheet of fibrous connective tissue covers the bundle of muscle fiber
and these bundles of muscle fiber are known as perimysium. So sheath of fibrous connective tissue over the whole muscle is epimysium. Sheath of fibrous connective tissue over bundle of muscle fiber is perimysium. Perimysium. Now attention please. Now there is a sheath of areolar connective tissue over these muscle fiber. सार्कोलेमा के ऊपर एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का शीथ होगा. सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर. उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का शीथ होता है और उस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के शीथ के लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा एंडोमाइसियम. तो पेरीमाइसियम कहाँ के ऊपर होता है? डेट इज प्रेजेंट ओवर फेसिक्यूलाई. और एंडोमाइसियम कहाँ के ऊपर होता है? एंडोमाइसियम is present. Perimysium is made up of dense regular fibrous connective tissue and endomysium is made up of areolar connective tissue. Endomysium is present over myocyte or myofiber and it is made up of areolar connective tissue. आप आगे चल के पढ़ने वाले हो कि आपके बॉडी के अंदर सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में सबसे अबंडेंट कौन सा होता है? एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू. सो व्हाट यू लर्न, देखो जितनी फेसिकुलाई होंगे, जितनी बंडल ऑफ मसल फाइबर है, उसमें हेयर एंड देयर आपको खूब सारे ब्लड वेसल्स नजर आ जाएंगे क्योंकि मसल्स के अंदर सप्लाई ब्लड की खूब सारी होती है. इट इज़ नॉट ए वेस्कुलर लाइक एपिथेलियल टिश्यू. इवन स्केलेटल मसल्स हैव वेरी अबंडेंट ब्लड सप्लाई एंड सो इज कार्डियक मसल, यू बेटर नो. उस साथ में यहाँ पे कुछ नर्व फाइबर भी नजर आएंगे. So they are having very good supply of blood and they are having very good supply from your nervous system, central nervous system as well as peripheral nervous system, or let's call that autonomic nervous system. So these are the blood vessels and these are nerve fibers here. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया TS of whole muscle. So I repeat, TS of whole muscle. Externally, the complete muscle is covered by a dense regular fibrous connective tissue sheath, which we call epimysium. Beneath epimysium, there are bundles of muscle fiber which has been accumulated together, collected together, and those bundles of muscle fiber is referred as to fasciculi. Fasciculi is covered by a dense fibrous regular connective tissue sheath, which we call perimysium. And within that fasciculi, the plasma membrane sarcolemma of each muscle cell is covered by a areolar connective tissue sheath which we call endomysium. और endomysium किसके ऊपर होता है? Over myocyte और myofiber. Is that clear up to here? Please say yes or no. Right. कई बार ना इस डायग्राम को दूसरी तरीके से भी शो कर देते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें थोड़ा सा. इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने, अच्छा आई एम रबिंग दिस ऑल पार्ट, जस्ट गेट ए स्क्रीनशॉट इफ इट इज़ नॉट डन. इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है और उसमें लेबलिंग वगैरह आप मुझे बता दो तो बड़ा अच्छा रहेगा. आई विल थिंक कि आपको ना सब चीज़ें समझ में आ गई है. तो लेट मी रिप्रेजेंट दिस डायग्राम लाइक दिस. लेट्स से दिस इज आउटर लेयर ऑफ मसल सेल and XYZ, whatever you want to name it, please name it, right? Inside it there is some structure something like this, which we call, this membrane is perimysium, and within perimysium is present, yes please, closely packed together myofiber, and covering of myofiber is sarcolemma, and over sarcolemma which membrane is present? Please say endomysium. And if I zoom out some part from here, it would be like there are so many myofiber which are like this. These are myofiber. I am just zooming out this part, right? And over myofiber you are having special blood vessels which has been
something like this. So this is epi, this is peri, this is endo, no fun in telling all the blood vessels. This is myofiber, तो कब over myofiber would be endomysium, and these are blood vessels. तो बच्चों इस डायग्राम को कई बार ना साइड वाइज ऐसे दिखा देते हैं, पर आप ये वाला डायग्राम याद रखो तो अच्छा है। अगर ये लेबलिंग वगैरह करने को आ जाता है तो आप ये भी याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, आर वी डन अप टू हियर? लेट मी क्लियर अप द बोर्ड नाउ। सो व्हाट यू लर्न अप टू नाउ, डेट जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादातर आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, उसमें एक्सेप्शन होते हैं कुछ जो एक्टोडर्मल हैं। मायोसार्को एंड मोटर, ये वो टर्मिनोलॉजी है जो मसल के लिए यूज़ होता है। जब हम मसल सेल की बात करेंगे तो हम मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मसल सेल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर की तरफ अरेंज होते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं मायोफिब्रिल, जिनमें अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। एंड होल मसल का टीएस आपने पढ़ लिया। मसल के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, देन एक्सटेंडेबिलिटी, एज वेल एज दे आर हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। आर वी डन अप टू हियर? Now let us talk about, let us summarize few function of muscle and then certain data, and I am going to start the skeletal muscle later on. ठीक है, तो जो functions of muscle की बात करेंगे, I just told you the function in the starting of lecture. I really want, अगर हम क्लास में होते तो आप मेरे साथ उनको बात करते। What is the major function of muscle? Movement of body part and locomotion. Movement of body part, thanks to my muscle I am able to write, right? And thanks to, देखो मूवमेंट और लोकोमोशन में फ़र्क होता है। लोकोमोशन वो मूवमेंट होता है जिसमें पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, दिस इज मूवमेंट बट दिस इज नॉट लोकोमोशन, एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस थिंग दिस इज लोकोमोशन। सो हम आप पढ़ोगे ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। Movement of body part and locomotion is the first function. Then facial expressions, then engulfing of food, travel of particles, peristalsis सुना है आपने? Peristalsis, it is the movement of food material throughout the gut. Even birth of a baby, delivering a baby or delivery of a baby, that is also the function of muscles. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपके खूब सारे मसल्स हैं जो एज अ रेजोनेटर काम करते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग, होता है ना कई बार पैरालिसिस आना शुरू हो जाता है, इवन योर टंग इज ए मसल, इट्स अ वॉलंटरली मसल। सो अनटिल अनलेस यू आर नॉट एबल टू मूव योर टंग, आर यू एबल टू प्रोनाउंस थिंग? Answer is no. You can make sound, but you cannot pronounce things very properly. Is that clear? So production of sound is also contributed, or also controlled by muscle. Production of sound. Then certain data here, and after that data, I am going to start the skeletal muscle. अगर डाटा की बात करें, which is the longest muscle? देखो जो लॉन्गेस्ट मसल का कंसेप्ट होता है बेटा, सार्टोरियस मसल। सार्टोरियस मसल इज योर लॉन्गेस्ट मसल। सार्टोरियस मसल कहाँ होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम अवर हिप रीजन, फ्रॉम द हिप रीजन अप टू नीज। जो मसल एराइज होती है वो सार्टोरियस मसल है। इसके अलग अलग पार्ट आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाके। फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ हिप रीजन on the back side up to the knees there are certain muscles which extend and they are the longest muscle in our body and we call that sartorius muscle. Then अगर largest muscle की बात आती है, देखो longest is different, largest is different. अगर largest muscle की बात आती है तो आप आंसर करेंगे gluteus maximus. gluteus maximus जिसको ना हम हिप मसल भी कहते हैं, बटक मसल कहते हैं, हिप मसल्स।
तो लार्जेस्ट इज हिप मसल्स, लॉन्गेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द हिप रीजन एंड गोज अप टू द नीज, राइट। देखो अगर आपने पढ़ा है हैमस्ट्रिंग्स के बारे में, क्वाड्रिसेप्स के बारे में, तो वो अलग मसल होती है। सार्टोरियस अलग मसल है, प्लीज़ डू रिमेंबर। जब मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, जब मस्कुलर मूवमेंट पढ़ेंगे आगे चल के, तो आपको ना सार्टोरियस मसल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा उस वक्त। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें। तो लॉन्गेस्ट इज डन, लार्जेस्ट इज डन, स्ट्रॉन्गेस्ट जो मसल होती है वो जॉज की मसल होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज मसेटर मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज मसेटर मसल। और जो मसेटर मसल होती है बेटा वो हमारे जॉज में होती है, इनको हम जॉज मसल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर दैट रीजन यू आर एबल टू मूव योर जॉज। देन स्मॉलेस्ट मसल की अगर बात करें, जो स्मॉलेस्ट मसल होती है दे आर रिलेटेड विद द बोन्स, स्मॉलेस्ट बोन्स। स्मॉलेस्ट मसल्स आर अटैच्ड टू द स्मॉलेस्ट बोन, और स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी स्टेप्स पढ़ के आते हैं। तो स्टेपिडियस इन द मिडिल ईयर, इन मिडिल ईयर इज स्मॉलेस्ट बोन, ठीक है बच्चों। तो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, और एक और आप डाटा याद रख लेना, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल कौन सी होती है। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, देखो ये तो लॉन्गेस्ट जो है ना, आपने स्केलेटल मसल लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल फाइबर कहाँ होते हैं, तो आप आंसर करेंगे इन द यूट्रस। तो जो प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस होता है उसके मसल फाइबर इलोंगेट करते चले जाते हैं, एंड दे आर द लॉन्गेस्ट मसल फाइबर, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। तो इन द यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी दे आर प्रेजेंट लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल्स, ठीक है बच्चों। तो ये 4-5 डाटा आपको याद रहेंगे। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है, लार्जेस्ट मसल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल एंड लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। फिर आपके ये बता दिया था मैंने, अबाउट 400 जो मसल होते हैं वो स्केलेटल होते हैं, और आउट ऑफ दैट 400 मसल 180 स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बैक रीजन, ठीक है बच्चों। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द मस्कुलर टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं 3 टाइप के मसल्स के बारे में। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट मस्कुलर टिश्यू विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट वुड बी योर स्केलेटल मसल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, शेवरिंग और पैरालिसिस का भी डेफिनेशन बता दूंगा आपको मैं थोड़ा सा। लेट मी डिफाइन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म शेवरिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म पैरालिसिस। आप देखो, हम होते हैं, वी ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। तो जब भी कभी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड कम हो गया है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर फॉल होने की कोशिश करेगा। यू बेटर नो अबाउट थर्मोडायनेमिक्स और हीट डायनेमिक्स बोलूँ मैं इसको। तो हमारा बॉडी हमेशा टेंड करता है उस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो आप बॉडी के अंदर हीट जनरेट करना चाहते हैं, और बॉडी के अंदर हीट जनरेट कहाँ से होता है, बाय द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। और वो जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होता है इन ऑर्डर टू जनरेट हीट इनसाइड द बॉडी, उसी को बोलते हैं शेवरिंग। तो हाउ यू डिफाइन शेवरिंग? इट इज इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स in order to generate heat। तो जब भी कभी आप शेविंग करते हो तो याद रखना आपका बॉडी हीट जनरेट करता है, राइट, और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर मैं बात करता हूँ पैरालिसिस का। जितने भी वॉलंटरी मसल्स हैं वो एक मोटर न्यूरॉन से कंट्रोल होते हैं। एक मोटर न्यूरॉन है जो वॉलंटरी मसल के पास जा रही है, ये सिग्नल देगी और एक कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर ये मोटर न्यूरॉन की सप्लाई कट हो जाए, इफ द सप्लाई ऑफ मोटर न्यूरॉन टुवर्ड्स ए मसल इज कट, क्या आप वॉलंटरी मूवमेंट कर पाओगे? आंसर इज नो। तो लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल over the skeletal muscles, over the voluntary muscles, loss of voluntary control over the contraction of muscle, we call that paralysis. Due to
डैमेज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, there is loss of voluntary control on muscular contraction. तो loss of voluntary control over muscular contraction, we call that condition as paralysis. ठीक है बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मसल विच इज स्केलेटल मसल. लेट मी स्टार्ट the first type of muscle here, and that first type of muscle would be skeletal muscle. skeletal muscles के बारे में कुछ चीज़ें अभी बता देता हूँ, और we still got 20-25 minutes. वैसे skeletal muscle इतने में हो जाएगा, but still let me see. थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया तो क्या हुआ, आप काफ़ी दिनों से लेक्चर भी तो नहीं अटेंड किया था आपने. Like there was holidays, Eid holidays for me and Raksha Bandhan holidays as well, right? Okay, so let me start with skeletal muscle. This is what is mentioned in our NCERT, skeletal muscular tissue, or we call that voluntary muscle, voluntary muscles. We also call that stripped muscle, or we also call that striated muscle. देखो, स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है विद बोन. या तो मसल टू बोन कनेक्शन क्या होता है, लेट्स से दिस इज अ मसल हियर एंड दिस इज अ बोन हियर. देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट अ मसल टू अ बोन, एंड these structures are referred as to tendons. So what are tendons? These are the structure which connect muscle to a bone. अच्छा, मसल में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो पार्ट बोन की तरफ होता है इसको बोलते बेटा इंसर्शन रीजन, और जो इंसर्शन रीजन होता है वो डिस्टल एरिया है, ये मूवेबल होता है, और जो ये होता है ये होता है प्रॉक्सिमल, इसको फिक्स्ड एरिया बोलते हैं, और प्रॉक्सिमल एरिया जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल वगैरह नहीं होता. एनीवेज, तो वो मसल जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है विद द बोन्स, दीज मसल्स आर रेफर्ड एज टू स्केलेटल मसल. तो पहला स्केलेटल मसल क्यों नाम, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट विद द स्केलेटन. दे आर अंडर अवर वॉलंटरी कंट्रोल. इन मसल्स तक आपके पास ना मोटर नर्व जाता है. मोटर नर्व कौन सा है, एक ऐसा नर्व जिसको आप वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं. बिकॉज दीज मसल्स रिसीव ए सप्लाई ऑफ मोटर नर्व, दे आर आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल. वॉलंटरी का मतलब होता है जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं. इन मसल्स के ऊपर आपको स्ट्रेशंस दिखेंगे, इन वो जो ग्रूव्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इन मसल्स के ऊपर आपको स्ट्रिप्स दिखेंगी. तो बिकॉज द डेवलपमेंट और अपीयरेंस ऑफ दोज ग्रूव्स एंड स्ट्रिप्स वी कॉल दैट स्ट्रेटेड मसल और स्ट्रिप्ड मसल. ठीक है बच्चे, अब स्केलेटल मसल के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस, 2-4 लाइनें, और उसके बाद इनके डायग्राम्स. These muscle fibers occur in bundle and are connected to the skeleton. They occur in bundles and are connected with skeleton. ठीक है बच्चों, नाउ स्केलेटल मसल्स के बारे में 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. ये जो मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ये इलोंगेटेड होती हैं, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस नहीं होता, ये बता दिया था मैंने. इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर प्रेजेंट एट पेरिफेरी. Nucleus and cytoplasm, both the structures are present at periphery. They are present at periphery. और इनके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस. चलो मैं एक अरेंजमेंट बना देता हूँ, मैं एनसीईआरटी डायग्राम ही बना देता हूँ यहाँ पर, और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं. लेट्स से दे आर elongated and cylindrical structures.
something like this. Yes. Now there are so many protein filaments which are present internally. Let me make it like this. Internally they are having so many protein filaments, और कुछ जगह पे प्रोटीन फिलामेंट्स डार्कली स्ट्रेन हो जाते हैं, क्यों, अबंडेंस ऑफ प्रोटीन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ जगह पे प्रोटीन फिलामेंट थोड़े से लाइट हो जाते हैं. जब इनके अंदर आप लाइट पास करते हो इन टिश्यूज़ के अंदर, तो उनके रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी को देख के इनको नाम भी दे देते हैं बैंड को. अगर मोनो रिफ्रैक्टिव है तो उसको हम आइसोट्रोपिक कह देते हैं, और मल्टी रिफ्रैक्टिव है तो एन आइसोट्रोपिक कह देते हैं. चलो खैर वो बाद की बातें हैं. नाउ अगर मैं इनका न्यूक्लियस आपको रिप्रेजेंट करूँ बच्चे, न्यूक्लियस पेरीफेरी ऑफ सेल पे होता है, और इनके अंदर ना मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. एंड दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इंडिविजुअल सेल. ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो इंडिविजुअल सेल में नहीं डिफरेंशिएट करता है, उस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म को आप क्या कहते हैं बच्चे? सिनकाइशियल. तो न्यूक्लियस कैसे होते हैं इसके अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर? मल्टी न्यूक्लिएटेड. और स्केलेटल मसल के न्यूक्लियर अरेंजमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं सिनकाइशियल. I told you earlier on in ascaris this condition, when a multinucleated mass of cytoplasm is not differentiated into individual cell, we call that condition as sinusitic condition or syncytial condition. तो जो मसल फाइबर होते हैं स्केलेटल मसल के, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनके न्यूक्लियस पेरीफेरी पे नज़र आते हैं, उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी ज़्यादा पेरीफेरी पर होता है. बाकी सेल के अंदर खूब सारे मायोफिब्रिल्स होंगे. तो अगर अच्छा इसी को मैं लेबल कर दूं, दीज स्ट्रक्चर्स आर, यस प्लीज, दीज आर न्यूक्लियस हेयर एंड दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल विद अ लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर, व्हाट वी कॉल दैट? सार्कोलेमा. इन स्ट्रक्चर्स को मैं अभी आगे चल के लेबल करूँगा. ठीक है, इज दैट क्लियर? या फिर इसी को हम इस वे में बना दे, अगर जो आपको कई सारी किताबों में मिलेगा डायग्राम, ये लेट से ये इसका सार्कोलेमा हो गया, एंड देन मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म आपने दिखा दिया. बैंड्स भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ थोड़े से. स्ट्रेशंस और स्ट्रिप क्यों कहते हैं? देखो स्ट्रिप्स दिख रही होंगी आपको मसल सेल के ऊपर, और जब ये स्ट्रिप्स की वजह से ग्रूव्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रूव जो थोड़े डार्क इन कलर है और कुछ ऐसे ग्रूव जो थोड़े लाइट इन कलर है, तो उसको स्ट्रेशंस भी कहते हैं. और मैं बता दूं आपको, स्केलेटल मसल के लिए बहुत सारी जगह या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर स्ट्रेटेड मसल वर्ड ही लिखा होता है. स्केलेटल मसल के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर, स्केलेटल मसल के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर स्ट्रेटेड मसल लिखा होता है. और वो स्ट्रेटेड मसल लिखने का क्या रीज़न है? बिकॉज उनके अंदर ये डार्क एंड लाइट ग्रूव्स बन जाते हैं. अब इन डार्क एंड लाइट ग्रूव्स में अब मैं जब न्यूक्लियस दिखाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे देयर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड. आपने ये डायग्राम बना ले, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको. बना लो तो इट्स योर चॉइस. देयर वुड बी ए मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू, which is not differentiated into individual cell, and that multinucleated mass of cytoplasm is referred as to syncytium. So skeletal muscle के जो फाइबर्स होते हैं वो cylindrical होते हैं, वो elongated होते हैं, उनके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है. दिस इज़ नॉट ए ब्रांच, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज हियर, राइट? तो मैं लिख देता हूँ इसमें, न्यूक्लियस cylindrical होते हैं, elongated होते हैं, दे आर नॉट ब्रांच्ड, दे आर अनब्रांच्ड, राइट. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरी पर होता है. न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड है. द ओनली मसल विच इज हैविंग ए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज स्केलेटल मसल. बाकी के दोनों मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होती है. और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कैसी होती है? डेट द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू इंडिविजुअल सेल, वी कॉल दैट सिनकाइशियल कंडीशन. इतना समझ में आया बच्चों? ये डायग्राम क्वेश्चंस वगैरह में अक्सर पूछ लिया जाता है. दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलेटल मसल. अभी हम 2-4 डायग्राम और बनाएंगे स्केलेटल मसल में, हम इतने आराम से मानने वाले नहीं हैं. दिस इज़
sarcolemma, no fun in telling, and this is nucleus. ठीक है, नेक्स्ट और 2-4 पॉइंट और बता दूं स्केलेटल मसल के बारे में। जो सार्कोलेमा होता है उसके नीचे क्या होगा, ऑल द मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट, और जो मसल नॉट मसल फाइबर, ऑल द मसल मायोफिब्रिल आर प्रेजेंट। नाउ लिसन दैट थिंग वेरी केयरफुली। Just beneath the sarcolemma, myofibrils are present at regular interval, और there are certain myofibrils जहाँ प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, अदर myofibrils जहाँ प्रोटीन कंटेंट कम है। तो at regular interval there are abundance of myofibrils which are present, and due to that region the muscle get what kind of property, what kind of feature? The muscle get striations or strip name. Is that clear? नाउ लोकेशन बता देता हूँ पहले इनकी मैं, और उसके बाद फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा कि लेट्स आई एम टेकिंग सम पार्ट ऑफ माय बाइसेप मसल। तो आपको पहले उसमें से निकाल लेंगे एक फेसिकुलाई, फिर निकाल लेंगे उसके अंदर से मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर से निकाल लेंगे मायोफिलामेंट, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज सार्कोमियर, वो डायग्राम पढ़ा देता हूँ। ठीक है, लेट अस नाउ गो on the locations and about the ultrastructure of myofiber. अगर लोकेशंस की बात करें बेटा, स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो योर आंसर वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, मसल्स ऑफ आवर लिम्स, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की जो मसल हैं जिनको आप वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हो, मसल्स ऑफ आवर लिम्ब, they are skeletal in nature. Then आपकी टंग, बॉडी वॉल, pharynx and upper part of esophagus, upper part of esophagus, ये सारी मसल स्केलेटल होती हैं। डोंट गेट कंफ्यूज हियर, यहाँ पे कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो मसल्स ऑफ लिम्स के अलावा अगर मैं लिम्स को हटा दूँ, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब को, माई टंग इज अंडर माई कंट्रोल एक्चुअली, बॉडी वॉल, राइट, pharynx help me to control my swelling as well sometimes. आप pharynx की मसल को कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मैं बोलूँ आपको अभी सांस होकर दिखाओ, you will be contracting your pharynx muscle. Upper part of esophagus is also made up of skeletal muscle. Then the ultrastructure of skeletal muscle. Do skeletal muscles have gap junction? Answer is no. I told you this earlier on. Skeletal muscles do not have gap junction. What I am writing here is ultrastructure of a myofiber. Ultrastructure of a myofiber. Right? Let's say the condition is like this. आपने क्या किया? You take some muscle tissue from somebody's forearm, right? And let's say this is that boy's thumb, and these are the fingers here, right? बस 4 फिंगर बनाओ, ज़्यादा मत बना देना उसको. Okay, these are the muscular tissues here. Biceps muscle, they originate from this part. So what I am doing here, I am taking a sample, I am taking a part. अब इसको ना अलग अलग लेवल पे मैग्नीफाई करते चले जाएंगे. आई एम टेकिंग ए पार्ट फ्रॉम हियर, और आपको क्या मिलेगा? मसल फैसिकुलाई. मसल फैसिकुलाई के अंदर क्या अरेंज होते हैं? दे आर सो मैनी मसल फाइबर विच हैज़ बीन अरेंज लाइक दिस. तो बच्चे क्या मिल गया आपको? फैसिकुलाई. ठीक है. अब इस फैसिकुलाई के अंदर से आप क्या निकालेंगे? यू विल बी मैग्नीफाइंग दिस अगेन. लेट्स से दिस इज मसल फैसिकुलाई. नो फन इन डूइंग दिस थिंग कि भाई स्ट्रेशंस वगैरह वहाँ पे भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं आपको.
ज़रूरी नहीं है वो एक दूसरे के नीचे ही अरेंज हो, वो अलग भी अरेंज हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एप्लियंस देखते हैं दे आर अरेंज लाइक दिस. इज दैट क्लियर? ऑल राइट. सो दैट इज मसल fasciculi. मसल fasciculi को अगर थोड़ा और मैग्नीफाई करेंगे, आई एम टेकिंग दिस पार्ट फ्रॉम हियर, एंड व्हाट इज दिस पार्ट? दिस इज ए myofiber, right? And when we magnify this myofiber here, it would be like this. Now this thing is very very important, please pay attention. Myofiber के अंदर there are some part which is very darkly stained, and there is other part which is not that much dark. In the myofiber there is some part which is very dark. अभी जो आप डायग्राम देखते आ रहे थे उस पर अल्टरनेट डार्क रीजन और लाइट रीजन में बना रहा था आपको, ठीक है. तो there is some part here which appear very dark under magnifying microscope here, and alternate part which is not that much dark. तो ये कुछ ऐसा होता चला जाएगा कि alternately throughout the whole length there is some darker region, there is some lighter region, and remember alternately होता है, तो डार्क के बाद लाइटर रीजन आएगा और लाइटर रीजन के बाद डार्कर रीजन आएगा. What's wrong with my marker? Please don't do that. There's something wrong with the board actually. Anyways, just imagine this condition. This is dark here. तो जब आप एक मायोफाइबर को मैग्नीफाई करते हो बच्चे, तो ये जो मायोफाइबर है मसल सेल, ये कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा. फर्स्ट यू मैग्नीफाई मायोफाइबर एंड देन यू मैग्नीफाई मायोफिलामेंट. अभी मायोफिलामेंट को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है. सो देयर इज अ रीजन विच इज लाइटर डार्कर लाइटर डार्कर लाइटर एंड सो ऑन. नाउ यहाँ तक समझ में आया? तो मसल, द होल मसल, मसल के अंदर से क्या निकलेगा? फेसिकुलाई, फेसिकुलाई के अंदर से क्या निकलेगा? मायोफाइबर, और मायोफाइबर के अंदर से क्या निकलेगा? मायोफिब्रिल. ऑलराइट, अब हम मायोफिब्रिल लेवल पे आ गए हैं एक्चुअली. अब अगर मैं मायोफाइबर को ऐसे दिखाऊं तो दिस वन मायोफाइबर वुड बी लाइक दिस, जिसके अंदर खूब सारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, एंड दिस इज मायोफिब्रिल हियर. अब दिस इज अ डार्क रीजन. In the center of dark, there is a region which is not that much darker. In the center of dark band, there is a region which is not that much darker. Something here like this as well. What I am telling you, in the center of a dark band, there is a region which is not that much darker. Or in the center of light band, there is a region which is little bit darker. ये लाइट बैंड का एक सेंटर, ये लाइट बैंड का दूसरा सेंटर, और ये लाइट बैंड का तीसरा सेंटर, अलग अलग लाइट का, ठीक है. लाइट बैंड के सेंटर में एक थोड़ा डार्कर रीजन होता है, और डार्क बैंड के सेंटर में एक थोड़ा सा लाइटर रीजन होता है. पहले तो ये बैंड की नोमेनक्लेचर कर दूं मैं. ये जो ये बैंड होता है बेटा, इसको बोलते हैं डार्क बैंड, और दूसरा नाम होता है इसका ए बैंड. और जो ये रीजन होता है बेटा, इसको बोलते हैं लाइट बैंड, और दूसरा नाम होता है इसका आई बैंड. तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना कि सेकंड जो अल्फ़ाबेट है उससे आप याद रख सकते हैं. डार्क बैंड में सेकंड अल्फ़ाबेट इज़ ए, तो डार्क बैंड इज़ ए बैंड. लाइट बैंड में सेकंड अल्फ़ाबेट इज़ आई, तो लाइट बैंड इज़ आई बैंड. इतना समझ में आया? ए बैंड क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये इसका दूसरा नाम होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड. इसका दूसरा नाम होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड. और दिस लाइट बैंड और आई बैंड इज आइसोट्रोपिक बैंड. तो व्हाई वी कॉल दैट आइसोट्रोपिक एंड एन आइसोट्रोपिक बैंड? आइसोट्रोपिक बैंड होता है बेटा आई बैंड और लाइट बैंड.
एंड आई देखो इसके अंदर मोनो रिफ्रैक्टिव लाइट होती है, इसके अंदर मल्टी रिफ्रैक्टिव लाइट है, जो भी नहीं डिस्कस करना है, नहीं आपको भी समझ में आने वाला हो। अभी आप सिर्फ याद रख लें डार्क बैंड इज ए बैंड एंड लाइट बैंड इज आई बैंड, मस्कुलर टिश्यू तक इतना याद रखें। नाउ in the center of dark band there is a zone which is little bit lighter and we call that zone as H zone, सबकी फुल फॉर्म लिखी जाएगी अभी। तो डार्क बैंड के सेंटर में एक जोन होता है जो थोड़ा लाइटर होता है, उसको बोलते हैं एच जोन, और लाइट बैंड के सेंटर में एक रीजन होता है जो लिटिल बिट डार्कर होता है, उसको बोलते हैं जेड बैंड और जेड लाइन, जेड लाइन और जेड बैंड, दिस इज जेड लाइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दो जेड लाइन, यहाँ तक समझ में आया? व्हाट आई एम टेलिंग यू, अल्टरनेट डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं। डार्क बैंड कौन सा है? ए बैंड, और लाइट बैंड कौन सा है बच्चों? आई बैंड। डार्क बैंड के सेंटर में एक थोड़ा लाइटर रीजन होता है जिसको एच जोन कहते हैं, और आई बैंड के सेंटर में एक थोड़ा सा डार्कर रीजन होता है जिसको जेड लाइन कहते हैं। नाउ एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक का जो पार्ट होता है किसी भी मायोफिलामेंट का, इस पार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं सार्कोमियर। तो व्हाट इज सार्कोमियर? व्हाट इज सार्कोमियर? Sarcomere, it is the functional unit of contraction. Structure and functional unit of contraction is sarcomere. Structural and functional unit of muscle contraction. और सार्कोमियर क्या होता है? आई एम क्लियरिंग अप दिस पार्ट फ्रॉम हियर। सार्कोमियर कौन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द एरिया और दिस इज द पार्ट ऑफ मसल फाइबर बिटवीन टू जेड लाइन, कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन, बिटवीन टू सक्सेसिव या कॉन्जिक्यूटिव जेड लाइन, व्हाट वी कॉल दैट? सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज region of myofibril between two Z line। चलो अब मैं इस वाले पार्ट को यहां मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं। इस वाले पार्ट को आई एम गोइंग टू मैग्नीफाई डेट हेयर। पहले मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगा, फिर मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगा, फिर इस वाले पार्ट को दिखाएंगे हम, ठीक है? लेट से अगर मैं जेड लाइन को बनाऊँ आपका, पहले तो सार्कोमियर में क्या होगा? देखो सार्कोमियर में ए बैंड कितने हैं बेटा? 1 2 3 गिन के बताओ। इट कंसिस्ट ऑफ 1 ए बैंड एंड हाफ ऑफ 2 आई बैंड। आ रहा है नजर? एक ए बैंड और 2 आधे आई बैंड है। जो सार्कोमियर होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 ए बैंड एंड हाफ ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ 1 ए बैंड एंड हाफ ऑफ 2 आई बैंड। आर वी डन अप टू हियर? नाउ लेट मी ड्रॉ हियर Z line first and then let me show you the different part of sarcomere. Let's say this is one Z line. देखो बच्चे इधर भी आधा आई बैंड होगा और इधर भी आधा आई बैंड होगा। नो फन इन टेलिंग। और बीच में क्या आ जाएगी? Z लाइन, राइट? दिस इज अदर साइड Z लाइन। लेट्स से दिस इज Z line on the other side. Let us make it like this. No fun in telling again. यहां भी आधा आई बैंड इस साइड होगा और आधा आई बैंड इस साइड होगा। आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड, आई बैंड। इज दैट क्लियर? What I told you, in the center of I band there are 2 Z line. अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक I band था
यहाँ से लेके यहाँ तक आई बैंड था, तो आई बैंड के सेंटर में क्या नज़र आया आपको? जेड लाइन। फिर शुरू होता है बेटा ए बैंड। ए बैंड वुड बी लाइक दिस, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको ड्रॉ मत करना, समझ लो पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है? ए बैंड है। अभी मैं वो लाइटर रीजन और डार्कर रीजन दिखाता चले जाऊंगा। तो बेटा ये हो गया आपका आधा आई बैंड, एक कंप्लीट ए बैंड और आधा आई बैंड, ठीक है। अब there is a very special protein which is present here. There is a very special protein which is present like this. अब मैं आपको दो तरह के मायोफिलामेंट भी शो कर दूंगा। There is a very special protein which is present like this. This is thick in nature. तो ये जो फिलामेंट आएगा थिक प्रोटीन वाला, इसको बोलेंगे बेटा थिक मायोफिलामेंट। और जो ये ग्रीन और ब्लैक में दिख रहे हैं उनकी लेंथ कैसी है? थिन मायोफिलामेंट। तो ए बैंड के एरिया में यू विल बी हैविंग अ थिक प्रोटीन लाइक दिस, एंड इन आई बैंड you will be only having thin protein. ठीक है बच्चों, are you getting this point? Why that part was getting very much darker and why other part was getting very much lighter? क्योंकि डार्कर पार्ट में आपके पास थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों आ जाएंगे, और लाइटर पार्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? थिन फिलामेंट। लाइटर पार्ट में आपके पास थिक फिलामेंट नहीं आएगा। My marker ink is going down today. I forget to refill them. Anyways, इतना समझ आ गया बच्चों। और मैं इसको लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बनाता हूँ, जहाँ जहाँ ए बैंड होगा वहाँ पर ये थिक फिलामेंट नजर आएगा। आई होप आप ऊपर वाले भी सेम बना ही लेंगे। नाउ लेबल करते हैं। This is I band. This is I band. In the center of I band there is a dark line. क्या कहते हैं इसको बेटा? Z line. In the center of I band there is a dark line, and what you call that? Z line. Z line के कुछ नाम बता देता हूँ। जो Z line होता है बेटा, इसका Z आया वर्ड, एक लैटिन वर्ड होता है आपके पास, जी विशन शीबे, जी विशन शीबे और जेड लाइन, और इसको आसान नाम है इसका डॉबीज लाइन और क्राउशेज मेम्ब्रेन। तो जो जेड लाइन है वो कहाँ की बनी होती है बेटा? उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिनिन प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन। और जो जेड लाइन होता है जीवन शीबे, शीबे का मतलब होता है डिस्क, और जो जीवन होता है वो एट ए साइड वर्ड यूज कर लेते हैं। खैर, डॉबीज लाइन और क्राउशेज मेम्ब्रेन। जेड लाइन इंटरसेक्ट करता है आई बैंड को। अब हेयर इन द सेंटर, ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा यहां से लेके यहां तक? यस प्लीज, दिस पार्ट इज ए बैंड। अब ए बैंड का जो सेंटर होता है उसमें कुछ जगह पर ये थिन फिलामेंट नहीं होता है। इन द सेंटर ऑफ ए बैंड देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर थिन फिलामेंट इज एब्सेंट। In the center of a band, those areas where thin filament is absent, that area is known as H band. So what I told you, in the center of A band एक लाइट, देखो A band में क्या था? A band में अगर मैं बात करूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दें, A band के अंदर थिन फिलामेंट भी था बेटा और थिक फिलामेंट भी था। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन का बना है। थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है उसमें एक्टिन होता है, ट्रोपोमाइसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। अभी ये चीज़ याद नहीं रखनी, थिक फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो 150 आर्मस्ट्रॉम होता है, थिन फिलामेंट का डायमीटर 75 आर्मस्ट्रॉम है। नो, नथिंग टू वरी। अब
नॉर्मली क्या था कि दो अलग अलग तरह के मायोफिलामेंट थे तो वो डार्क होता जा रहा था। यहाँ पे दो अलग तरह की मायोफिलामेंट, इफ़ यू डू रिमेंबर दिस पार्ट हियर, यहाँ पर दो अलग तरह की मायोफिलामेंट है, तो दिस इज द डार्कर रीजन। अब ये वो एरिया आ गया इस डार्कर रीजन का जहाँ पर मायोफिलामेंट थिन नहीं है। इस एरिया को क्या बोलते हैं बेटा? एच जोन। एच स्टैंड फॉर हैंसन, एच जोन और हैंसन्स जोन। ठीक है बेटा, तो क्या बताया आपको? आई बैंड के सेंटर में एक डार्कर लाइन जिसको जेड लाइन कहते हैं, और ए बैंड के सेंटर में एक लाइटर रीजन जिसको एच जोन कहते हैं। अब एच जोन के सेंटर में भी कुछ होता है। एच जोन के सेंटर में, अगर इन द सेंटर ऑफ एच जोन बात करूं, देयर इज अ लिटिल बिट डार्कर प्रोटीन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट लाइक दिस। इन द सेंटर ऑफ एच जोन एक छोटी सी डार्कर लाइन नजर आती है, तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा एम लाइन, मिटल-शिबे लाइन। एम लाइन और मिटल-शिबे लाइन। ये मिटल-शिबे, जीवन-शिबे वर्ड याद ना रहे तो कोई शून्य, कभी नहीं पूछा जाएगा। एम लाइन और जेड लाइन में कंफ्यूज मत होना। एम लाइन, एम बैंड, जेड लाइन, जेड बैंड सब एक चीज़ के नाम है। एच लाइन या एच बैंड सब एक चीज़ के नाम है। तो क्या बताया आपको? नाउ कमिंग ऑन ए वेरी क्विक रिविजन। यस प्लीज़, इसको यहाँ बना लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ वर्ड वुड बी लेस विजिबल। मैं बना देता हूँ इसको यहाँ पर। यहाँ पे बहुत आसान रहेगा आपके लिए समझना। डोंट टेल मी दैट पार्ट ऑफ बॉडी इज आल्सो नॉट विजिबल। माई कैमरा मैन इज एब्सेंट टूडे, आई कैन नॉट फिक्स माई कैमरा, राइट। खैर, इसको ना ऐसे बनाते हैं। आपके पास बच्चे ये एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पर लेट से ये लाइट बैंड है, फिर यहाँ पे लेट से ये डार्क बैंड है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। फिर ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क बैंड, और फिर लाइट बैंड। अब लाइट बैंड के सेंटर में मैंने बताया एक डार्कर रीजन होता है जो एक्टिनिन प्रोटीन का बना है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज व्हाट वी कॉल सार्कोमिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। एक सार्कोमिया में दो आधे आई बैंड होते हैं, एक पूरा ए बैंड होता है। ए बैंड के सेंटर में थोड़ा सा लाइटर रीजन आएगा, उसको बोलेंगे एच जोन, हैंसन जोन। और एच जोन के सेंटर में जो वो डार्क लाइन आती है उसको बोलते हैं एम लाइन। एच जोन के सेंटर में जो डार्क लाइन आती है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया आपने? एम लाइन। ये हो गया आपका। अच्छा, और बता दूं, ये जो ये प्रोटीन है कौन सी है? मायोसिन, थिक फिलामेंट। और जो ये थिन फिलामेंट है ये कहाँ में क्या क्या बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्लस ट्रोपोमाइसिन प्लस ट्रोपोनिन। नॉर्मली तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपसे पूछा जाए ए बैंड में क्या क्या होता है, ए बैंड में क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे ए बैंड में एक्टिन भी होता है सब, ए बैंड में मायोसिन भी होता है, एक्टिन प्लस मायोसिन। आई बैंड में क्या होता है? आई बैंड में देयर इज़ नो मायोसिन प्रेजेंट, देयर इज़ ओनली एक्टिन। ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन को काउंट नहीं करते इन जनरल। अच्छा, अगर एक और मैं पॉइंट बताऊँ आपको, ए बैंड में ना दो चीज़ नज़र आएगी आपको। ए बैंड में एक रीजन वो है जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, और एक रीजन वो है जहाँ पे एक्टिन नहीं है, सिर्फ मायोसिन है। वो रीजन जहाँ पे एक्टिन नहीं है और सिर्फ मायोसिन है, दैट पार्ट ऑफ ए बैंड वेयर मायोसिन इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, वी कॉल दैट एच बैंड। और वो रीजन जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं ओ बैंड। वो रीजन जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं उसको बोलते हैं ओ बैंड। तो वी यूज टू रिमेंबर, और आई यूज टू रिमेंबर, जो ए बैंड है, रिमेंबर दैट पंजाबी सॉन्ग ओ हो, राइट। सो ए बैंड इज मेड अप ऑफ ओ बैंड प्लस एच बैंड प्लस ओ बैंड, ओ हो, राइट। ओ बैंड कौन सा एरिया है? जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों होंगे। एच बैंड कौन सा एरिया है? जहाँ मायोसिन के ऊपर एक्टिन नहीं होता, देयर इज नो एक्टिन देयर, एंड देन ओ बैंड। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो ये फिर से एक बार हम याद कर लेंगे। तो स्केलेटल मसल क्या होती हैं बच्चे? स्केलेटल मसल वो है जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, उनको आप अपने विल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है। जब मैं डिफेंसिस पढ़ाऊँगा तो वो कवर कर लेंगे। स्केलेटल मसल आपका जो है लोकेशन याद रख लेना। स्केलेटल मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, मसल सेल होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, उसके अंदर गैप जंक्शन नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डार्क एंड लाइट बैंड आते हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, इसकी वजह से स्ट्रेशंस और स्ट्रिप्स डेवलप हो गई हैं।
देन बाकी आपने पढ़ लिया कि भाई वो उनके अंदर ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती है, वो इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं बनाएंगी, ये क्या होता है आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर इंटरबीजेस नहीं होंगे, अबंडेंट ब्लड सप्लाई होता है और बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। विल बी डिस्कसिंग डेट इन डिफरेंसेस। फॉर दिस लेक्चर दिस इज़ ऑल कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने स्केलेटल मसल सारा ही पढ़ा दिया आपको, यहाँ पे मैंने स्केलेटल मसल आपको सारा ही पढ़ा दिया है। तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर, रीड NCERT एंड लर्न ऑल द थिंग्स। अगले लेक्चर में स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल करके फिर एक कंपेरिजन करते रहेंगे मस्कुलर टिश्यू का। So this is all for today. I wish you a very good luck. I wish you a very good day. Thank you. Class is dismissed.